Hello students, a warm welcome to all in my class. Today in this class we are going to discuss a new topic, that is under Indian Contract Act 1872. In the previous classes we have already discussed the other matters, the fundamental concepts of Indian Contract Act, that is what is Indian Contract Act, its scope, its objective, okay, and then the characteristics. Clear? Characteristics means the basic terms and what is contract and different types of contract. Okay, so see, while we study the what do you mean by contract, clear, there we come a word that is enforceable by law. So what is that enforceable by law? How, why law will enforce an agreement? Clear? As we know, when an agreement plus enforceable by law is a contract. Clear? So agreement, we know, agreement simply two persons meet to each other. They can easily create an agreement. But then after making the agreement is supposed to presented to the law, to the legal court or the legal person's agent, what we call. So they check some requirements, some elements must be present in the agreement. Clear? Then if all the requirements are present, then they declare the agreement as a contract. Clear? They enforce the agreement and that agreement become known as the contract. Okay, yes. So that enforceability, clear, that enforceability is depend upon some essential requirements, some conditions, some reasons. If those reasons, those conditions are fulfilled by agreement, then only law will enforce the agreement. Clear? That particular thing, clear, is known as the essential requirements or essential elements of a contract or a valid contract, what we call contract, or otherwise it is known as a valid contract. See, so in this class today we are going to discuss what are those requirements, essential elements, clear, by which a agreement, clear, by satisfying the requirements an agreement is considered to be a contract. ओके, तो आज के क्लास में हम वही चीज को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे 10 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, 10 रिक्वायरमेंट्स, ओके, और जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, क्लियर, which are need to be satisfied. An agreement needs to satisfy all the essential requirements to declare as a contract, or what we call to enforceable by law. एक एग्रीमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होने के लिए और एनफोर्स होने के लिए जो 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे के सारे required needs to satisfy all the essential requirement. जो 10 के 10 रिक्वायरमेंट हैं, वो 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करना चाहिए. अगर एक भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल ना हो तो उसको मतलब एनफोर्सबल नहीं होता है और वो जो एग्रीमेंट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए वॉइड एग्रीमेंट, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है,
है कि नहीं? दो रास्ता है आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट, either it will be a valid contract or it will be a void agreement. Clear? That is depend upon those essential requirements. Okay, if the essential requirements are there, are present, all the essential requirement, then law will enforce that particular agreement and that agreement is known as the contract. है कि नहीं? लॉ उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर देगा, अप्रूव कर देगा, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. अभी जो पार्टी उसमें है वो एग्रीमेंट में, वो सब बाउंड हो जाएंगे एक लीगल रिलेशनशिप में. बट अगर लॉ देखेगा कि उसमें एक सिंपल सा भी 10 में से कोई एक भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट अगर मिसिंग है, तो वो क्या करेगा? वो चीज को, वो एग्रीमेंट को कैंसिल कर देगा एंड दैट एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, वो जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जो अपना है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी तक हमने जो देखा द फंडामेंटल थिंग्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये जो 10 एलिमेंट है ना, ये जो 10 एलिमेंट में ही ये जो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है. मतलब ये जो 10 एलिमेंट में, क्लियर? ये तो हम अभी बेसिकली पढ़ेंगे कि वो जो 10 एलिमेंट क्या है, फिर उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हर एक एलिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक एलिमेंट में मतलब कैसे आप सेटिस्फाई कर पाओगे लॉ को. मतलब ऐसा क्या होने से लॉ वो चीज को लेके सेटिस्फाई होगा और नहीं होगा. ठीक है? वो चीज को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वो जो 10 रिक्वायरमेंट्स हैं क्या. ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आपको ये 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स को याद रखना पड़ेगा. थोड़ा में भी आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि थियोरिटिकल है. लॉ इज ए थियोरिटिकल पेपर, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पेपर तो नहीं है, प्रॉब्लम मैटर नहीं है कि प्रॉब्लम करते चलो, थियोरिटिकल है, आपको याद रखना पड़ेगा. तो जो थ्योरी हम याद रखते हैं, ऐसे हापाजाइट याद रखने से कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाओगे डेफिनेटली. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक सिंपल, जो हम बोलते हैं ना, जो सिंपल वर्ड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ड, जो वर्ड के बेसिस पे वो पॉइंट्स को हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. ठीक है? सो आप लोगों के लिए मैंने भी ऐसे एक स्ट्रैटेजी बनाया है, एक सिंपल वर्ड्स बनाया है, जिससे कि आप वो चीजों को अच्छे से याद रख पाओ. ये जो 10 के 10 एलिमेंट्स को अच्छे से आप याद रख पाओ. ठीक है? तो क्या है वो, चलो देखते हैं. सो एज, जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारे पास जनरली 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है? तो वो जो 10 एलिमेंट्स को आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले तो आप काम करो, एक मैं जो बोल रहा हूं, जो कोड, मतलब जो एक स्पेशल वर्ड हमने बनाया है, उसको आप पहले याद रख लो. फिर उसके रिलेटेड जो भी हैं पॉइंट्स, वो सब आपको इजीली याद आ जाएगा. ठीक है? तो क्या है द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज, ये याद रखो. सबसे पहले देखो ऑयल, OIL, ऑयल. ठीक है? ऑयल, OIL, ऑयल. देन CFL जो आता था ना, CFL बल्ब, मतलब हर एक वर्ड का कोई मीनिंग होना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में रहेगा. ऑयल जो हम हर रोज यूज करते हैं, CFL बल्ब रहता है कि नहीं, जो कि सबसे पहले मतलब फिलामेंट के बाद जो सबसे पहले डेवलप हुआ था CFL, अभी LED बल्ब आ गया है कि नहीं. तो CFL दैट इज आल्सो एफिशिएंट, तो उसको याद रख लो एसेंशियल्स के हिसाब से, ऑयल, CFL. ठीक है? फिर नेक्स्ट एक है ACP टू कंट्रोल ए पर्टिकुलर, टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कौन करता है? पुलिस. तो वो एक पोजीशन है ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ले लो, और कोई भी ले लो आप. ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, लॉ को रिलेटेड है तो आ जाएगा अच्छे से याद. ऑयल, CFL, ACP, क्लियर. और एक इसमें याद रखे L. जैसे देखो ये मैंने 3 वर्ड जो कंस्ट्रक्ट किया है, हर एक वर्ड में एक मीनिंग है. ऑयल, CFL, ACPL. ACPL में तो नहीं है, ACP है. तो L जो है ना,
हर एक वर्ड के एंड में एल आता है। ऑयल में भी एंड में एल है, CFL के एंड में भी एल है, और SCP के एंड में भी है एल। ACP फिर एल को आपको ऐड करना है। तो कितने हो गए? ये हो गए 3, 3, 6, ये 4, 10 हो गया ना, 10 एलिमेंट्स। ये जो 10 एलिमेंट आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑयल, CFL और SCPL। ऑयल, CFL, ACPL। क्लियर? अभी हम देखेंगे ये सब चीजों का मीनिंग क्या है। O, I, L, CFL, ACPL, ये सब चीजों में क्या क्या आता है, ठीक है। क्लियर? तो चलो देखते हैं। ये याद आ गया ना आपको अच्छे से? देखो ये स्ट्रैटेजी है, ये आपको अच्छा लग रहा है आप फॉलो करो, नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप अपने हिसाब से भी कुछ बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जैसे बताएंगे आप वैसे ही फॉलो करो, हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, आप अपने से कुछ भी एक अलग वर्ड बना लो, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, है कि नहीं? क्लियर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो उसके हिसाब से जो हमने बताया, इसके हिसाब से क्या क्या 10 एलिमेंट हमारे पास हैं, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले नंबर 1। क्लियर? ये जो मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जिसके बाद जो देखा जाता है, तो सबसे पहले आता है ओ था ना, तो O फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। Offer and acceptance. The first element is offer and acceptance. That is O for offer and acceptance. Then second, I for intend to create a legal relationship. Intend to create a legal relationship. Intend to create a legal relationship, जिसको हम बोलते हैं इंटेंशन, लीगल इंटेंशन, ठीक है। आप पहले ये सब अच्छे से याद कर लो, फिर इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10 के 10 आपको याद आना चाहिए। फिर ये 10 के 10 क्या क्या है उसको हम डिटेल में जानेंगे, है कि नहीं। तो पहला तो आ गया ऑयल, ऑयल है ना, O फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, I intend to create a legal relationship. Then third one is L for lawful consideration. Lawful consideration. Clear? हो गया? आ गया याद? OIL, ऑयल। ऑयल में क्या क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन। क्लियर? क्लियर है? देन नेक्स्ट द फोर्थ वन, नेक्स्ट वर्ड क्या है? CFL। C फॉर कैपेसिटी, कैपेसिटीज, कैपेसिटी कर दो, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द पार्टीज, एबल है कि नहीं है। C फॉर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। देन F फॉर फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब योर इंटेंशन, व्यू पॉइंट, विलिंगनेस, उसका हम बोलते हैं कंसेंट। योर कंसेंट मतलब तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज इन योर माइंड, योर कंसेंट, योर व्यू पॉइंट, योर परसेप्शन, दैट इज कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री मतलब फ्री, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हर्डल्स। क्लियर? CF। नेक्स्ट है L, ठीक है। L से क्या आता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब द एम,
व्हाई यू प्रिपेयर दिस एग्रीमेंट, आप दोनों एक लीगल रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एम, क्लियर, गोल क्या है लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट, दैट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया 6th वन, क्लियर, ऑयल CFL। नेक्स्ट क्या है ACPL, तो नेक्स्ट आ गया A फॉर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड void, agreement expressly not declared void, agreement expressly not declared void, एग्रीमेंट हम जो बना रहे हैं वो एक void एग्रीमेंट पहले से डिक्लेयर्ड ना हो, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड void, पहले से void डिक्लेयर्ड ना हो, ये हमें चाहिए, that is the 7th element। then the next AC, C, ठीक है, C है ना, ACPL, C for certainty of meaning, certainty of meaning। 8th one is certainty of meaning। हम जो बना रहे हैं, जो एग्रीमेंट में जो वर्ड्स, जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स सेंटेंस मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन मतलब फिक्स्ड हो, डिटरमाइंड हो, क्लियर हो, बिकॉज हम जो वर्ड्स यूज करते हैं हर एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग रहता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे वर्ड को बट उसका मीनिंग वो कॉन्टेक्स्ट में, वो एग्रीमेंट में क्या है, दैट मस्ट बी सर्टेन, दैट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। AC, देन है PL, P, नेक्स्ट 9th one, 9th P फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब करना, जो हमने डिटरमाइन किया है कि ये करेंगे वो करेंगे, जो भी आप लोगों ने प्रोमिस किया है, जो भी वो जो एग्रीमेंट में रिलेटेड जो पार्टीज हैं उन्होंने जो भी प्रोमिस किया है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, तुम मेरे लिए ये करोगे, तो जो भी वो प्रोमिस किए हैं करूंगा, करेंगे, द परफॉर्मेंस इट मस्ट बी पॉसिबल, होना चाहिए, इट द मीन्स इट इज मस्ट बी, you must able to perform what you promise, that is called possibility, clear। मैं बोलूंगा कि मैं हेवन को जाऊंगा, that is not possible, तुम मुझे 5 लाख दो मैं हेवन जाके आऊंगा, that is not possible, possibility of performance, आ गया समझ में, possibility of performance, मैं सब आपको समझाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, 1 by 1 समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये सब याद रख लो कि ये पॉइंट्स क्या क्या है। 9th one is over, then next ACP, clear, ACP, then last one L for legal formalities, legal formalities, legal formality, एंड में जो भी जो फॉर्मेलिटी मतलब जब प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कि नहीं। तो एक एग्रीमेंट में स्टूडेंट्स अच्छे से याद रख लो, देख लो अच्छे से एक बार कि एक एग्रीमेंट में ये सारे के सारे जो हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस, ये कंडीशन ले लो, रिक्वायरमेंट ले लो, मतलब आप जो एग्रीमेंट बना रहे हो, आप दो जन जो करने के लिए डिसाइड किए हो, प्रोमिस किए हो, उसके अंदर ये 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। अगर ना हुए तो पास हो गया, डिक्लेयर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, अगर नहीं है, एक भी अगर नहीं है तो फेल, और आप बन गए अभी वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो जो 10 एलिमेंट क्या क्या है,
oil, CFL, ACPL. Oil, O for offer and acceptance, I for intent to create a legal relationship, L for lawful consideration, C for capacity of the parties, F for free consent, L for lawful object. Clear? Then A for agreement not expressly declared void, C certainty of meaning, P possibility of performance, L legal formalities. ये 10 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास होना जरूरी है, आपके पास मतलब आपके एग्रीमेंट में होना, ठीक है? क्लियर? तो देखो अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और वो एग्जांपल में ये 10 एलिमेंट, ये जो 10 एलिमेंट होते क्या हैं उसको मैं आपको सिंपल से एग्रीमेंट मतलब सिंपल से एग्जांपल में समझाऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो देख लो इस ये जो 10 एग्रीमेंट, ये जो 10 एलिमेंट में किधर किधर मतलब कोई भी वर्ड में आपको डाउट है? वर्ड में देखो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक है, एक जन ऑफर देगा, दूसरा जन उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स इट मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्ट्स, 2 पर्सन। जो मैंने बोला था देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन। मैं ही ऑफर मैं ही एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं ऑफर करूंगा दूसरे को, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। मस्ट मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, एक ऑफर करेगा दूसरा इसको एक्सेप्ट करेगा। देयर मस्ट बी 2 पर्सन इन ईच एग्रीमेंट। क्लियर? यह है पहला कंडीशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी ऑफर एंड देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस। जो ऑफर दिया गया उसको एक्सेप्ट करना है। क्लियर? ठीक है? देन इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंट मीन्स योर इंटेंशन। इंटेंट मतलब इंटेंशन, इंटेंशन मतलब योर विलिंगनेस। जब हम बोलते हैं ना यू इंटेंट टू क्रिएट, यू ऑफर बिकॉज यू इंटेंट, यू वांट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, सो दैट इज इंटेंशन। इंटेंशन मतलब लॉजिक क्या है, क्यों ये आप कर रहे हो, आपने ऑफर दिया क्यों दिया। क्लियर? सो जो भी है आपका माइंड में, दिमाग में जो भी ऑब्जेक्टिव है, दैट मस्ट बी ए टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। मतलब आप जो इंटेंशन है आपका, इट मस्ट बी टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। मतलब आप जो भी देखो, आप जो रिलेशनशिप बनाने वाले हो वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब लॉ उसमें आपको एक राइट्स देगा दोनों को। किस हिसाब से? बिकॉज यू आर एंटर इनटू ए लीगल रिलेशन। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, नॉट टू क्रिएट ए इलीगल रिलेशनशिप। अगर आपका इंटेंशन एक इलीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो डेफिनेटली, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल रिलेशनशिप, अगर आपका इंटेंशन ही इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में नहीं आता है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है? तो ये और एक है एलिमेंट कि योर इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, नॉट टू क्रिएट ए इलीगल। इलीगल चीजों के लिए अगर आप परमिशन लेने के लिए आओगे तो कोई भी परमिशन नहीं देगा। देगा इफ यू हैव इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशन। ठीक है? सही। देन थर्ड वन, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो कि हमने देखा है, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं जो कि टर्म्स में, क्लियर, बेसिक टर्म्स में। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया, इन रिटर्न आप मेरे लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हो? मैंने आपको ये देने का प्रॉमिस किया, आपने मुझे वो देने का प्रॉमिस किया, इन एक्सचेंज। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न कुछ होना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर, है कि नहीं? वन वे नहीं होगा, टू वे, जैसे मतलब टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। मेरे तरफ से कुछ आपके लिए जाएगा, आपके तरफ से कुछ मेरे लिए आना पड़ेगा। दैट इज कंसिडरेशन एंड दैट मस्ट बी ए लॉफुल थिंग। लॉफुल मतलब लीगल, मतलब हम कुछ ऐसा एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में लॉ के व्यू पॉइंट में लीगल है, फेयर है कि नहीं? फेयर मतलब मैं आपको ऐसा कुछ दे रहा हूं जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है,
और आप मुझे कुछ ऐसा दे रहे हो जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है, वही चीजों को हम कंसिडर कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई अनलॉफुल थिंग्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड, क्लियर? अनलॉफुल थिंग्स लाइक सोचो कि आप बोल रहे हो कि मैं आपको अपना घर दे दूंगा, इन रिटर्न आप मुझे क्या दोगे? गन, क्लियर है? गन 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 मतलब जो राइफल और कुछ भी ले लो। तो गन रखना अगर लाइसेंस के साथ लाए हो तो लीगल है, बट विदाउट लाइसेंस पोजेसिंग आर्म, क्लियर, मतलब द वेपन इज इलीगल, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? दैट इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। आगे समझ में? नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी मतलब एबिलिटी। यू मस्ट बी, आप जिसके साथ एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दैट पर्सन मस्ट बी कैपेबल, एबिलिटी, दैट पर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग फॉर यू, टू एंटर इनटू ए लीगल रिलेशनशिप। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में लॉ सेट किया गया है कि हु इज कैपेबल ऑफ एंटर इनटू ए लीगल रिलेशन? ओनली मेजर पर्सन। मेजर का मतलब क्या है? अदर देन माइनर। अदर देन माइनर। माइनर मतलब कौन है स्टूडेंट्स? माइनर मतलब ऑल, एनीवन, क्लियर, मेल फीमेल एनीवन बिलो द एज ऑफ 18, 18 साल से नीचे जो हैं वो सबको हम बोलते हैं माइनर। और अगर आप माइनर हो तो आपके पास लीगल एबिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, क्लियर, इफ यू आर ए माइनर। आफ्टर क्रॉसिंग 18 you are declared as a major person by the government issue you a voter ID. Voter ID is the proof of your majority, that you are a major person, and after getting majority you can make a legal relationship with anyone, clear? So ये जो है ना कैपेसिटी, ये मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूं जो कि मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी हिसाब से और बहुत सारे चीजें हैं जिसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं वेदर ही इज कैपेबल और नॉट, क्लियर? तो कैपेसिटी मतलब यू मस्ट बी एबल टू डू समथिंग, क्लियर? आपने मेरे साथ एक लीगल रिलेशनशिप बनाया है जो कि मुझे करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट अगर मैं एबल नहीं हूं तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा डेफिनेटली, और फिर आप मेरे ऊपर केस करोगे, है कि नहीं? तो उसके लिए ये क्या कर देते हैं, सबसे पहले से ही बता दिए हैं। मतलब आप देखो एग्रीमेंट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही वो सब चीजें देख देते हैं कि ये सब है कि नहीं। अगर है तो अप्रूव हो, आप आगे काम करो, नहीं है तो नॉट अप्रूव्ड। तो इसके लिए ये देख रहे हैं कि कैपेसिटी है कि नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब योर व्यू। दो मिनिमम 2 पार्टी, जैसे हमने बोला मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी जन एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए चाहते हैं, वो सबका कंसेंट, कंसेंट मतलब इच्छा, चाह, योर विलिंगनेस मस्ट बी फ्री। फ्री का मतलब क्या है? दैट मस्ट कम सो मोटो फ्रॉम योर ओन माइंड, मतलब आपके दिमाग से आ रहा है, दिल से आ रहा है कि हाँ मैं ये करूंगा। दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। दैट फ्री कंसेंट मीन्स समथिंग विच केम आउट ऑफ योर माइंड बाय योर ओन व्यू पॉइंट। You are not taking the decision with some pressure। कोई प्रेशर कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई बता रहा है, क्लियर? You are not in any pressure। कोई भी प्रेशर नहीं है, जो भी आ रहा है आपके अपने दिमाग से आ रहा है। You take that decision without any fear, without any pressure, without any other third parties pressure। जो भी आ रहा है आपके दिमाग से आ रहा है, that must be there। Your consent must be free। That means that consent, your intention must be from your, that must be came from your own mind, clear? With your own thinking, with your own perception, clear? उसको हम बोलते हैं free consent, clear? बाकी है lawful object। object reason, जो आप लीगल रिलेशनशिप बना के क्या करोगे, क्या करना चाहते हो लीगल रिलेशनशिप बना के, दैट इज द ऑब्जेक्ट, दैट मस्ट बी लॉफुल। आप बोलोगे कि सर ए और बी ने
मिलके एक लीगल रिलेशनशिप बनाया है, क्या करने के लिए? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? कि टू मेक द टेरर अटैक, वो एक टेरर अटैक करने के लिए ए और बी मिलके एक लीगल रिलेशन है, दैट इज, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगा, बिकॉज योर इंटेंशन, योर ऑब्जेक्ट इज इलीगल। आप एक लीगल काम करो, ए और बी मिल रहे हैं कुछ बिजनेस करने के लिए, सही है, ए और बी मिल रहे हैं मैरिज करने के लिए, सही है, ए और बी मिल रहे हैं कुछ परचेज सेल करने के लिए, सही है, ए और बी मिल रहे हैं टेरर करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, किसी को ठगने के लिए, किसी के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सब इलीगल है। ये ऑब्जेक्ट के साथ लॉ आपको परमिशन नहीं देगा कि आप करो, है कि नहीं? डेफिनेटली सही है कि नहीं? देखो, लॉ जो भी करता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो ये जो चीजें हैं ना, ये 10 एलिमेंट, ये सब सोशल वेलफेयर को लेके बनाया गया है। ये है मतलब सोशली वेलफेयर है, ये नहीं है मतलब सोशली वेलफेयर नहीं है। इसीलिए ये 10 चीजों को वो बोलता है कि ये 10 चीज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 चीज है सोशली अप्रूव्ड है, ठीक है? अगर आप ऐसे कुछ चीज करना चाहते हो जो कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, दैट मीन्स इट इज अपोज टू सोसाइटी, तो उसके लिए आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है? क्लियर? बाकी नेक्स्ट आ गया एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब लॉ क्या करता है, अपने तरफ से पहले से ऐसे कुछ चीजों को दे देता है कि आप ये बिल्कुल मत करो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो जो चीजें हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब पहले से वॉइड बना चुका है, लॉ नहीं डिक्लेयर करता ये वॉइड है, तो उसको लेके जाने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं? उसको लॉ के पास लेके जाने का कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि लॉ पहले से बोल दिया, अरे ये चीजों को मैं अप्रूव नहीं करूंगा, आप ये चीज को लेके क्यों आए हो मेरे पास? अगर और कुछ होता तो एनालिसिस होता, वो डिस्कस होता तो कोई अलग बात है, वो हम डिटरमाइन करेंगे। बट ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि लॉ पहले से दे दिया है कि ये सब चीजें मेरे पास लेके मत आओ। ऐसे कुछ 5-6 हैं चीजें जो कि लॉ पहले से बोल दिया है कि ये सब चीजें पहले से मैं अपने तरफ से डिक्लेयर कर चुका हूं, ये वॉइड, ये सब चीजें लेके मेरे पास मत लाओ अपने एग्रीमेंट में, ठीक है? क्लियर? देन है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो मैंने बोला कि आप जो एग्रीमेंट में जो भी सेंटेंस, वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, योर प्रोमिस जो भी लिखा है, हर एक वर्ड का बहुत सारे वैरायटी मीनिंग होता है कि नहीं? तो वो वैरायटी में कौन क्या लेगा नहीं पता, वी डोंट नो। सो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ड हमने यूज किया है उसका सर्टेन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, दैट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, ताकि उसको लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आगे कंफ्यूजन होगा तो एग्रीमेंट फुलफिल होने में, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोमिस फुलफिल होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि आपने जो भी करना है, जो भी आप यूज कर रहे हो वर्ड प्रोमिस, वो उसका मीनिंग क्या है वो सर्टेनली एग्जैक्टली मेंशन कर दो, ताकि उसको रिलेटेड कोई किसी को भी कोई डाउट ना हो, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मैं बोला, आपने जो प्रोमिस किया है एक दूसरे के साथ, जो करने के लिए जो करना है, दैट मस्ट बी पॉसिबल, आप कर पाओगे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं कर सकता, अगर नहीं कर पाऊंगा तो उसको अप्रूव करने का कोई फायदा नहीं है। ए बी के लिए कुछ बोल रहा है, जैसे मैंने बोला, ए बी के बोला कि आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं हेवन जाके आऊंगा, स्वर्ग जाके आपको आके दिखाऊंगा। वो बोला दैट इज इम्पॉसिबल, कोई मर के कैसे आ सकता है वापस, दैट इज इम्पॉसिबल। सो यू कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट on this particular viewpoint, because here one promise is very difficult, not difficult, impossible to do, तो वो नहीं हो सकता। सो जो परफॉर्म करना है वो पॉसिबल होना है। और नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज, यू मस्ट फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज laid down by the law। लॉ ने जो लीगल फॉर्मेलिटी दिया है वो सब आप फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? जो फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटी, ये सब है ना स्टूडेंट्स, ये जो 10 के पॉइंट है ना, ये 10 पॉइंट 10 चैप्टर हैं, हर एक पॉइंट का एक चैप्टर, एक लंबा रहता है, पूरा हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। आप अभी समझ में आएगा कि सर ये पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया, अब आप अच्छे
अभी आपको क्या करना है, ये 10 पॉइंट याद रखना है, और ये 10 पॉइंट होता क्या है उसको बस याद रखना है। डिटेल में हम बाद में जाएंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, क्लियर। ये जो 10 एलिमेंट है तो अप्रूव है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप देखोगे ये 10 एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो चलो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था स्टूडेंट्स, क्या लिया था कि मिस्टर क्या था, राजन, दैट इज द ऑफरर, एंड मिस्टर राकेश, ये है ऑफरी, और जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टी, है कि नहीं। तो जैसे हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, जो कि मैं पहले से लिया हूं, राजन ने, मिस्टर राजन, ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, wants to sell his building to Mr. Rakesh. Clear? Mr. Rajan, a owner of a building at Mumbai, wants to sell his building to Mr. Rakesh. Clear? For rupees 70 lakhs, and he wants to receive the payment by account pay, account transfer, and the document of the building is sent by post from Rajan to Rakesh. All the legal documents, paperwork, clear, and the possession, that is key. ये है उनका ऑफर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया इन दोनों का एग्रीमेंट, ये दोनों ने एग्रीमेंट किया, ठीक है, ये दोनों एक साथ गए। अभी ये लोग गए, सोचो कि ये लोग एग्रीमेंट बनाए, बना के क्या हुआ एग्रीमेंट, राजन ने बोला कि मैं आपको अपना बिल्डिंग बेचूंगा 70 लाख में, जो कि है मुंबई में एक फ्लैट है। राकेश बोला ठीक है, मैं 70 लाख में आपको ये खरीदूंगा, और क्या है मतलब, और क्या है उनका कंडीशन कि राजन को पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर में लेना है, और राकेश जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग का, वो बाय पोस्ट में रिसीव करेगा। ये है इनका एग्रीमेंट। ये लिख के लेके गए लीगल एजेंट के पास अप्रूव करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो वो अभी चेक करेगा कि सब लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। सबसे पहले देखेगा क्या, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यस, दो जन है, एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, तो 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज अप्रूव्ड। एक पहला पॉइंट है सेटिस्फाइड कि ऑफर है राजन और राकेश, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो सही है। एक ने ऑफर किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। देन सेकंड, इंटेंट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, यस ऑब्वियसली, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी दूसरे को बेचना, उसके रिलेटेड वो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू लेना, दैट इज ए लीगल रिलेशन, है कि नहीं। इसमें तो कोई इलीगल थिंग नहीं है ना, प्रॉपर्टी खरीदा बेचा जाता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं बेचना चाहता हूं, आपको चाहिए, आप खरीदना चाहते हो। सो फ्रॉम लीगल, फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट, दैट इज ए फेयर थिंग। सो ये भी पॉइंट हो गया। देयर इंटेंशन इज टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, वो दोनों चाहते हैं कि हम ये अपना बिल्डिंग जो ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, दैट इज द इंटेंशन, आवर इंटेंशन to purchase and sell a building, that is a legal relationship. तो second point is also satisfied. ओके, ये दोनों नहीं चाहते हैं कि हम बिल्डिंग मतलब खरीदे बेचे और उसमें और कुछ करना है, नहीं, वो खरीद, जब सिंपल बिल्डिंग, मुझे मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग मैं बेचना चाहता हूं, वो खरीदना चाहता है, दैट इज द इंटेंशन। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। इधर कंसिडरेशन क्या है स्टूडेंट्स, राजन का कंसिडरेशन राकेश के लिए क्या है, बिल्डिंग। राकेश का कंसिडरेशन राजन के लिए, मतलब राजन राकेश को क्या दिया, बिल्डिंग। राकेश ने राजन को क्या देगा, मनी 70 लाख, दैट इज ए लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन। मैंने आपको बिल्डिंग दिया, आपने मुझे पैसा दिया। लीगल कंसिडरेशन मतलब आप जो चीजें एक्सचेंज कर रहे हो, वो चीजें, दैट थिंग मस्ट बी ए लॉफुल थिंग। तो पैसा लीगल, बिल्डिंग लीगल, तो दोनों अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो दोनों लीगल चीज है, दैट मीन्स योर कंसिडरेशन इज लॉफुल। तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कैपेसिटी।
ये जो है ना राजन, इसको हम देखेंगे कैपेसिटी। राजन क्या है? राजन एक पर्सन है जिसका एज है 40 इयर्स, ठीक है। वो एक इंडियन सिटीजन है जो कि रहता है मुंबई में, उधर वो उसका बिल्डिंग बेचना चाहता है। और राकेश, उसका एज है 50 इयर्स, वो भी एक इंडियन सिटीजन है कि नहीं, और वो रहता है किधर? सोचो कि गुजरात में, तो वो खरीदना चाहता है मुंबई में बिल्डिंग। तो हियर द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज आर क्या है? बोथ आर मेजर। और जो है और पॉइंट्स है कि दोनों पागल नहीं है, अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। तो ये पॉइंट भी उन लोगों ने देखा कि हाँ सैटिस्फाइड। क्लियर? सही है। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। ये जो दोनों करना चाहते हैं राजन राकेश, इसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है। राजन को कोई प्रेशराइज नहीं किया कि आप अपना बिल्डिंग बेच दो बेच दो बेच दो, नहीं, वो अपने हिसाब से सोचा कि नहीं मैं ये बिल्डिंग बेच देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। राकेश को भी खरीदो 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 कोई नहीं बोला, वो अपने हिसाब से अपने मन से ही बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा। तो हियर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज फ्री, बिकॉज दोनों का जो है अपने दिमाग से आया कि हाँ मैं ये करूंगा। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। इधर इनका ऑब्जेक्ट क्या है? मैं बिल्डिंग बेचूंगा, पैसा लूंगा। सो द ऑब्जेक्ट इज वेरी लीगल। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, मैं नहीं मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं, और राकेश को ये बिल्डिंग चाहिए, तो मैं उसको बेच रहा हूं, वो मुझे पैसा दे रहा है, तो उससे सोशल बेनिफिट होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आवर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, सेटिस्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो एग्रीमेंट है नॉट डिक्लेयर वॉइड, मैं आपको वो बताऊंगा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है। तो उसमें ये नहीं आता है, वो जो लॉ ने दिया है ना उसमें ये नहीं आता है। लॉ ने नहीं बोला है कि आप एग्रीमेंट अपना बिल्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो बोले आप कर सकते हो। सो ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड कि मतलब आपका जो आप जो करना चाहते हैं ना, वो जो वॉइड लिस्ट, एक लिस्ट है, वॉइड मतलब एक लिस्ट है, 5-6 आइटम का लिस्ट है आपका, जो आप जो करना चाहते हो ना वो 5-6 आइटम से अलग होना चाहिए। वो 5-6 आइटम है तो वो नहीं सेटिस्फाइड, बट ये जो करना चाहते हैं वो 5-6 आइटम में नहीं आता है, तो आप कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है? क्लियर? देन नेक्स्ट आ गया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इधर आपने जो जो लिखा है एवरीथिंग आर सर्टेन, मीनिंग पूरा क्लियर है। मैं अपना बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग इधर है मुंबई में, ये जगह पे इसका है, उसका स्क्वायर फीट, उसका सिनेरियो सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। 70 लाख क्लियर, और बाकी जो अकाउंट देना है अकाउंट नंबर इज गिवन, एवरीथिंग इज डिटेल इज गिवन सर्टेन, तो वो भी है, तो सर्टेनिटी इज क्लियर, तो हो गया अप्रूव्ड। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये करना कोई इम्पॉसिबल थिंग थोड़ी ना है, मुझे एग्री हो गया, मैं आपको 70 लाख अकाउंट में दूंगा, आप मुझे बिल्डिंग का पोजेशन और डॉक्यूमेंट, द की एंड डॉक्यूमेंट पोस्टल में दोगे। दैट इज नॉट ए इम्पॉसिबल थिंग, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल थिंग, तो हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड जो आप कर रहे हो लीगल फॉर्मेलिटी के हिसाब से, मतलब आप हमारे पास आए, आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, फिर लीगली सब होगा, तो वो भी सेटिस्फाइड है, तो है ना 10 के 10 एलिमेंट सेटिस्फाइड। नाउ ये जो है जो लीगल ऑफिसर ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये उसको कर दिया अप्रूव, क्लियर, और वो हो गया इनका कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या होगा, उसके बाद ये दोनों जो जो करना चाहते हैं ये करेंगे। अभी क्या होगा, राकेश राजन को पैसा देगा और राजन राकेश को बिल्डिंग का पोजीशन दे जाएगा। देन आफ्टर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। क्लियर? सोचो ये 10 में से अगर कोई भी एक पॉइंट ना होता सेटिस्फाइड, तो क्या होता, ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कौन सा पॉइंट की देखो, कोई भी अगर देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये ऐसा है कि सोचो कि कोई भी एक ले लो, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट में, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, जो बिल्डिंग में ट्रांसफर करना चाहता है, वो बिल्डिंग में वो लोग क्या करना चाहते हैं कि वो स्मगलिंग करना चाहते हैं, तो द ऑब्जेक्ट इज इलीगल, तो वो कैंसिल हो जाता।
आ रहा ना समझ में? क्लियर? तो ये हैं 10 एलिमेंट। ये 10 एलिमेंट को आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप ये 10 एलिमेंट आपके दिमाग में आ गया। कैसे याद रखना है? ऑयल, CFL, ACPL, ये 3 वर्ड्स को याद रखो। ये 3 वर्ड्स को रिलेटेड ये जो 10 पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट का बेसिक मीनिंग क्या है, ये है इसका बेसिक पॉइंट। और डिटेल में हम जाएंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, है कि नहीं? हर एक पॉइंट को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो फॉर टुडे वी कंक्लूड आवर क्लास विद दिस। क्लियर? सो ये क्लास में हमने सिंपली देखा क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, टुडेज your time, your presence, and I wish you all a good day and next session. Thank you.